Shmaya, shall we start? Okay. Yes, 50 participants is here and they are joining. Bismillahirrahmanirrahim. I'm audible? Yes. Okay. Assalamu alaikum all. Good afternoon, good evening, and good morning for my to my international participant. This is Sumaila Waqas, founder and CEO of Educationists of Pakistan. As you know, the vision of Educationists of Pakistan to provide best possible solutions regarding educational issues in this new era. As you know, this is the post-conference session. Clear one thing, this is not any training, not any workshop, not any certification course. This is just an awareness session regarding testing and assessment Shumaila? criteria. Sorry. Yes. Shumaila, your Yes, voice sir. is breaking. And your voice is breaking and Okay. your voice is also bouncing back. Right. तो अगर सब अपने माइक को म्यूट कर लें. Sir Waqas, kindly check. It's clear now? Yes, it's clear now. तमाम स्पीकर तमाम के अगर माइक म्यूट करवा लें प्लीज, so Sir, I that think the voice won't be down. No, I see Tanya is unmute. Mohammed Ajmal Khan is unmute. Kindly all mute your mic yourself, otherwise यहाँ से host भी कर सकते हैं. And one thing, if anyone unable to join this Zoom meeting because the limited number of participants is here to join this, so they can watch our EUP page and group, and you can share their Mohammed Arif. Okay. So clear one thing. शायद मेरी आवाज नहीं हुई थी, मैं दोबारा क्लियर कर दूं. This is not a workshop, not any training session, not any certification course or certification training. This is only an awareness session regarding testing and assessment criteria. Being live, okay, got it. So we will move to our moderator and our speaker. Really honored to have two wonderful personalities here, Dr. Shahzad Ziva and Dr. Naveed Yusuf. Before the session, before this awareness session, I want to introduce my moderator, Ms. Afroz Anis. Afroz, are you here? Yes, I'm here. Afroz Anis is a certified trainer from Turning Point. She is the founder and director of Trajectory Training and Consultancy and SM Robotics. She holds MSc in Physics and B.Ed from KU. She has been teaching physics in AKU-EB. Yes, AKU-EB, Aga Khan Board. At Infaq Foundation, Korangi Academy, and Habib Girls School. She is diversified professional, having 15 years of experience in teaching physics, mathematics, and robotics. She holds different certificates from AKU-EB, spelled TRC, EOP, AdLab, and she is internationally certified trainer of personality type-based teaching skills course. If you know about type-based teaching skills course, our trademark of Educationists of Pakistan. She is passionate and goal-oriented trainer and conducted several trainings. Yes, over to Ms. Afroz Anis.
Thank you so much, Shumaila Bakas, for introducing me. And it's a great pleasure for me to introduce our distinguished speaker who is going to talk about the testing and assessment criteria, reliability and validity. So first, let me introduce the renowned person, Dr. Shehzad Jiva, as all know about him. Dr. Shehzad Jiva is the director of Aga Khan University Examination Board since 2014 and holds a joint appointment as an assistant professor of Faculty of Arts and Science, AKU. Currently, 2021, he is the chairman of National Steering Committee of IBCC. He is also a member of National Curriculum Council, Punjab Examination Commission, PEC, Sindh Curriculum Council, among many other high-level strategic government committees. He also provides guidance for developing a strategy for formatting assessment in 2021. From 2018 to 2020, he successfully co-led the capacity building of Balochistan Assessment and Examination Commission and Standard Assessment, which was funded by UNICEF and European Union. Internationally, Dr. Jiva was appointed in 2021 on the Board of Trustees of International Association for Education Assessment. And he did his PhD from the University of Cambridge, UK, and his PhD thesis... Sorry to interrupt, Afroz. Sorry to interrupt. Your voice is not clear, I think. Some participant is in chatting box written. He's audible, quite audible. Audible? Sir? Yes, the Okay. voice is very clear at my end too. Okay, Yeah. okay. Yes, Carry on. Thank you so much, sir. Okay. Very long introduction to the long, short one. Okay, he did his PhD from the University of Cambridge, UK, and his PhD thesis was awarded Toby Jackman Prize for the best PhD thesis. So this is, let's welcome Dr. Shehzad Jiva. It's good to see you. And Thank you very the second one is speaker, we have the Dr. Naveed Yusuf. Dr. Naveed Yusuf is the Associate Director, Assessment and Research at the Aga Khan University Examination Board and Associate Professor of Practice Department for Education. He obtained his PhD in medical education, but focusing on assessment, psychometrics, and standard testing from Italy, and fellowship on simulation-based assessment and testing development from USA. He is the member of International Association for the Educational Assessment. At the national level, he is the member of Punjab Examination Commission, and he has served as National Commission as Education for the Asian Development Bank. Thank you so much. Yes, welcome to Dr. Naveed Thank Yusuf. you, and assalamu alaikum everyone. Walaikum assalam, sir. Thank you so much, sir. Really honored to have you two wonderful, wonderful personality. Okay, so we'll start. Our first question is, sir, first discuss. Okay, right. Sir, our first question from the participant or from the EOP platform, what kind of test should be a good test? Dr. Jiva, if you may start, please. Thank you very much. I think I'll just talk at a high level, but then I think from the technical point, I would like Dr. Naveed to respond. But you know, at the high level that I'm going to talk about is something when in 2015 I had a conversation with Dr. Naveed, and I asked him exactly the same question. You know, what would be a good test? तो इन्होंने जो बात शुरू की is that you know, a testing is like in education is measurement of knowledge, skills, cognitive levels, and it has to be, you know, accurate so that we are able to give proper feedback to the students, ताकि उन बच्चों की एक सही जो एबिलिटी होती है वो हम उसे बता सकें, वो फीडबैक दे सकें. And he said, but this is a very complex process, assessment in education. लोग उसे शायद हमारे मुल्क में समझते नहीं है, और ये ग्लोबली ये इशू है. ऐसी बात नहीं कि ये सिर्फ हमारे मुल्क में है, लेकिन दुनिया भर में ये इशू है.
और उन्होंने एक एग्जाम्पल मुझे दी दैट डॉक्टर जीवा, अगर आप मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मेरा कद 10 फीट है, तो वो कहेंगे कि भाई आप लगभग 6 फीट के लगते हैं, आप 10 के नहीं हो सकते। तो उसमें इसने कहा कि इन्होंने कि या तो उसमें फिर आपके जो मेजरमेंट टूल विच इज द मेजरिंग टेप, उसमें एरर है, या जिसने मेजर किया है उसमें एरर है, उसने सही तरह मेजर नहीं किया, या दोनों में एरर्स हैं। तो एक बेस्ट टूल बनाना है एजुकेशन में, it is a very complex process, not only in the development side but also when you measure it. और हमारे मुल्क में और दीगर मुल्क में ये बहुत बड़ा मसला है कि ना ही टेस्ट टूल सही बनता है और ना ही उसे मेजर करने वाला सही होता है, जिसकी वजह से आप जो फीडबैक बच्चे को दे रहे हैं वो सही नहीं होते। इसकी एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल मैं आपको दूंगा that yesterday I was giving a talk and I was also listening to a young gentleman, and he was saying that he was the best in his school and he used to always come first, and when he went to do his NTS exams uska list mein naam bhi nahi aaya tha, and for him he felt as if throughout his schooling life people were lying to him. और उसे एक और डाउट था, या तो वो टेस्ट सही नहीं था या वहां पे कुछ मसले थे। But then, that is something, I won't go further what he said, but this is something that I want to talk to you about. But Dr. Naveed, over to you. You want to go more in detail and talk about the quality of the test. Yes, so thank you so much, Dr. Jiva, for this wonderful start. So if you will go and look at the terms assessment, testing, evaluation, what you will see कि ये सारे जो अल्फाज हैं, ये सब कहीं ना कहीं मेजरमेंट से जुड़े हैं। तो आप कुछ ना कुछ मेजर करना चाह रहे हैं, और जब हम टेस्ट्स की बात करते हैं, स्कूल टेस्ट्स की, एग्जाम्स की, तो हम बात करते हैं, हम मेजर करना चाहते हैं स्टूडेंट्स ने कितना लर्न किया, और हम ये देखते हैं कि जो हमने पढ़ाया वो उन्होंने सीखा या नहीं सीखा, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो स्किल्स हो, और जो हम बहुत कम तवज्जो देते हैं उसमें आता है चाहे वो एटीट्यूड्स या वैल्यूज हो। और आप बिल्कुल इस असेसमेंट या टेस्टिंग के प्रोसेस को एक मेजरमेंट के प्रोसेस से कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसा डॉक्टर जीवा ने कहा कि जितना और जिस तरीके से मेजरमेंट का प्रोसेस बेहतर हो सकता है वो हम सब जानते हैं, उसी तरह टेस्टिंग और असेसमेंट का प्रोसेस भी बेहतर हो सकता है। आई विल गिव यू एग्जांपल्स। इन्होंने हाइट की बात की, मैं वेट की बात कर लेता हूं ताकि थोड़ा और समझ आ जाए। आप ट्रैवल करते हैं, आप फ्रूट लेने जाते हैं, और काफी खवातीन है यहाँ जो ज्वेलरी खरीदती हैं, गोल्ड एंड डायमंड्स खरीदती हैं, तो वो गोल्ड और डायमंड भी खरीदने जाती हैं। और हम जब भी ये चीजें खरीदते हैं तो हम इनका वजन जरूर नाप तोल करके खरीदते हैं। तो क्या हम क्या कर रहे होते हैं, हम असेस कर रहे होते हैं द वेट, और उसके लिए हमारे पास एक टूल मौजूद होता है जो एक वेइंग स्केल की सूरत में, एक तराजू की सूरत में मौजूद होता है। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रैवल कर रहा हूं और मुझे एक लगेज, एक सूटकेस, आपको पता है 23 केजी का अलाउड है, मेरी एयरलाइन कहती है 23 केजी या उसके अंदर अंदर होगा तो वो पास हो जाएगा, आप ले जा सकते हैं, 23 केजी के ऊपर होगा तो वो फेल हो जाएगा, हम उसको नहीं जाने देंगे जहाज। अब आप घर पे तैयार हुए, एयरपोर्ट के लिए निकले, और आपने कहा कि अब मैं लगेज वेट कर लूं, ये पास होगा या नहीं होगा। आपने अपने घर के तराजू में, वेइंग स्केल में जो आपके पास था, उस पे इसको रखा और उसने आपको दिखाया 24, बल्कि कह दें 21 केजी। आप खुश हो गए, आपने कहा ये पास हो जाएगा क्योंकि ये 23 के अंदर अंदर। आपने फौरन इसको तराजू से हटाया,
आखिरी जूते पहने, चाबी ली और आप घर से निकल रहे हैं, आपने कहा एक दफा और देख लेता हूं या देख लेती हूँ। बैग लॉक है, ना उस सूटकेस में आपने कुछ डाला है ना कुछ निकाला है, आपका वेइंग स्केल भी वही है, वहीं रखा हुआ है, आपने दोबारा उसको वेइंग स्केल पे रखा और उसे दिखा दिया 25 केजी। अब आपने कहा ये तो फेल हो जाएगा। तो लगेज भी वही है, टूल भी वही है, रिजल्ट अलग है। एक दफा पास हो गया, एक दफा फेल हो गया। इसकी एक और एग्जांपल ले लें, आप मेजरिंग टेप ले लें और उसकी हाइट नापना शुरू हो जाए और आप कहें हाँ हाँ इसकी हाइट चूंकि 18 इंचेस है तो ये पास हो जाएगा, बट आप वेट नहीं देख रहे, एयरलाइन ने आपको वेट कहा है। तो एक तो मेजर करने वाला सही होना चाहिए, क्या मेजर कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, वेट का वेट मेजर हो रहा है या वेट का हाइट मेजर हो रहा है, और जो तराजू और टूल आप यूज कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। अब इसी को हम ले आते हैं एजुकेशन पे। एजुकेशन में मेजर करने वाला उस्ताद है या एग्जामिनर कहते हैं हम उसको। जो टूल आप यूज कर रहे हैं वो आपका इम्तिहानी पर्चा है, इम्तिहानी सवालात है, आपने टेस्ट की बात की, एग्जाम पेपर की बात की। जो चीज मेजर हो रही है वो है आपका करिकुलम, आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या वही आप मेजर कर रहे हैं या आप वेट का हाइट मेजर करने चले? तो सबसे पहली चीज जो अच्छे टेस्ट में होती है वो वही मेजर करे जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपके करिकुलम में या आपके सिलेबस में लिखे हुए। अगर उसमें लिखा हुआ है कि उसको नॉलेज होनी चाहिए तो आप नॉलेज असेस करें। अगर उसमें लिखा हुआ है इसको ये करना आना चाहिए तो आपको फिर स्किल्स मेजर करने पड़ेंगे। और अगर उसमें ये लिखा हुआ है कि वो इस एटीट्यूड से करेगा, उसका बिहेवियर ऐसा होगा, उसके वैल्यूज ऐसे होंगे, तो फिर आपको वो एटीट्यूड्स और वैल्यूज असेस करने पड़ेंगे। फिर आप पेपर एंड पेंसिल टेस्ट लेना बेकार है, नॉलेज टेस्ट लेना बेकार है। हर कोई कहेंगे कि मैं सच बोलूंगा, हर कोई कहेगा मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, हर कोई कहेगा मैं एक्सीलेंट टीम वर्कर बनूंगा, बट जब तक करवा के नहीं देखेंगे पता नहीं लगेगा। तो टेस्ट, चूंकि आप जो टाइटल है आज का उसमें ये दो लफ्ज हैं, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा वक्त ले रहा हूं क्योंकि ये समझने में थोड़ी सी देर लगती है। तो अगर आप वही चीज मेजर कर रहे हैं जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में लिखी हुई है तो आपका टेस्ट वैलिड है। ये पहला क्राइटेरिया है एक अच्छे टेस्ट का, वैलिड होना चाहिए। नॉलेज के लिए नॉलेज को असेस करें, स्किल्स के लिए स्किल्स को असेस करें, एटीट्यूड के लिए एटीट्यूड को असेस करें। नॉलेज अगर उसको सिर्फ नॉलेज लेवल पे आनी चाहिए, उसको मालूम होने चाहिए फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो फैक्ट्स एंड फिगर्स पूछिए। अगर आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव में है द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब, अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंड, इंटरप्रेट, अप्लाई, तो फिर नॉलेज नहीं है, फिर नॉलेज के बियॉन्ड है, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन है। फिर एक रोट लर्निंग वाला टेस्ट भी इनवैलिड हो जाएगा इवन फॉर नॉलेज, क्योंकि आप वो नहीं पूछ रहे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या लर्निंग आउटकम्स में था। उसमें लिखा हुआ था स्टूडेंट को ये नॉलेज इस्तेमाल करनी आनी चाहिए, उसको इसकी समझ होनी चाहिए, आप फैक्चुअल नॉलेज या रट्टाफिकेशन पूछ रहे हैं, फिर वैलिडिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, टेस्ट खराब हो जाएगा। रिलायबिलिटी की बात कर लेते हैं। रिलायबिलिटी है कि जो मेजर करने वाला है उसको सही मेजर करना आना चाहिए, और जो आपका टूल है, जो वेइंग स्केल था, वो गलत वजन तो नहीं बता रहा, आपका इम्तिहानी पर्चा या आपकी मार्किंग स्कीम या आपका मॉडल आंसर गलत नतीजे पर तो नहीं पहुंचा रहा आपको। तो क्या एग्जामिनर ट्रेन था? क्या जिसने पेपर मार्क किया वो टीचर या मार्कर ट्रेन था? क्या उसके पास एक मॉडल आंसर या मार्किंग स्कीम मौजूद थी? क्या उसने तमाम स्टूडेंट्स को एक जैसे जवाबात के एक जैसे नंबर दिए, या दो एक जैसे जवाबात में एक को बहुत हाई नंबर मिले हुए और एक को बहुत लो मिले हुए हैं? तो जब मेजरमेंट करते वक्त, जब जांचते वक्त आपके रिजल्ट्स में एरर आएगा तो वो रिलायबिलिटी खराब करेगा। जब इम्तिहानी पर्चा बनाते वक्त अगर आप एरर करेंगे, आप उसका पर्चा नहीं बनाएंगे जिस पे इम्तिहान है, तो वो वैलिडिटी खराब करेगा। सो ये वैलिडिटी और रिलायबिलिटी
दो important criteria है for a good test. You should test, you should assess, you should measure what you are supposed to measure, what you are supposed to assess, directly linked and aligned to your learning outcomes and objectives. And second, there has to be model answers, there has to be marking schemes, there has to be training of the markers so that there is no error while testing, while scoring, while marking. Sorry for a long response. I try to be bilingual as well. I see people coming from different contexts. Over to you, Shumaila. Thank you so much, sir. You explained very well. और वो कहते हैं ना क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलते हैं, तो मेरे जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को भी काफी अफाका हो, उन क्वेश्चंस को भी आंसर मिल गया कि मैं आगे पूछती कि फिर किस तरह से होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल वाली बात होनी चाहिए, या फिर उससे आगे हम एग्जाम किस तरह लें, क्वेश्चन किस तरह बनाएं. सेकंड क्वेश्चन ही मेरा ये था कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चन. आपने बहुत सारी चीजें उस पर क्लियर की कि जब हमारा पर्पस होगा और हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाए होंगे कि वो नॉलेज से रिलेटेड हो, तो हम उसी तरह के क्वेश्चन करेंगे यकीनन. जब हमारा ऑब्जेक्टिव ही होगा कि हमें स्किल्स उसकी मेजर करनी है, तो उससे रिलेटेड होगा. लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को जरूर ऐड करूंगी कि आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर हम एक अच्छे सवाल की बात करें, क्योंकि इस पे पूरी वर्कशॉप भी होती हैं कि अच्छे सवाल, जिससे कहते हैं हम सवालात का फन आना चाहिए आपको. दिस इज अ आर्ट. क्वेश्चनर बनाना और क्वेश्चन करना ये एक आर्ट है. तो एक अच्छे सवाल की क्या क्वालिटी हो सकती है आपकी नजर? थैंक यू. अगर मैं इसको बहुत आसानी से दो क्राइटेरिया में डिवाइड कर दूं, तो उसको हम कहते हैं कॉन्स्ट्रक्ट और कंटेंट. कॉन्स्ट्रक्ट मतलब उसकी बनावट कैसी है, क्या उसकी बनावट, उसका कॉन्स्ट्रक्ट अच्छे सवाल बनाने के उसूलों के मुताबिक है या नहीं है. और दूसरा उसका कंटेंट, कि आप उसमें पूछ क्या रहे हैं. सवाल तो बहुत अच्छा बना है, बट जो हम आम लफ्जों में कहते हैं, हो सकता है आउट ऑफ कोर्स हो सकता है करिकुलम या सिलेबस से अलाइंड ना हो सकता है कि नॉलेज के लिए आपने हाई लेवल सवाल पूछ लिया, फैक्ट के लिए आपने इंटरप्रिटेशन पूछ ली, या इंटरप्रिटेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपने एक फैक्चुअल नॉलेज पूछ ली, या फिर और आगे चलें, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, नॉलेज के लिए स्किल्स, या स्किल्स के लिए नॉलेज का इम्तिहान दे दिया, क्योंकि वो आसान होता है ना. पेपर पेंसिल का इम्तिहान लेना बड़ा आसान है, और इसीलिए हम स्किल्स और एटीट्यूड्स पर तवज्जो ही नहीं देते. तो वो एक इनवैलिड इम्तिहान हो जाता है, क्योंकि आपने उसका इम्तिहान नहीं बना. अब हम आ जाते हैं सवालात की तरफ. पहले कॉन्स्ट्रक्ट और फिर कंटेंट. कंटेंट की पहले बात कर लेते हैं. कंटेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर लर्निंग आउटकम्स, टू योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है और जो कंटेंट करिकुलम में लिखा हुआ है और जो क्लासरूम में पढ़ाया लिखाया गया और जो किताब और लर्निंग रिसोर्सेज में मौजूद था, उसी के बेसिस पे सवाल होना चाहिए, वरना अनफेयर हो जाएगा. या तो आपने पढ़ाया नहीं है, या उस पर कोई किताब नहीं थी, उस पर कोई स्टूडेंट को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए लर्निंग रिसोर्स नहीं था, या वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव का हिस्सा ही नहीं था, वो आउट ऑफ कोर्स सवाल आ गया. कॉन्स्ट्रक्ट की बात कर लेते हैं. हर तरह का सवाल, जैसे मैं देख रहा था अभी चैट बॉक्स पे, एमसीक्यूज की बड़ी बात हो रही है. एमसीक्यूज जरूरत से ज्यादा बदनाम भी है. सो एमसीक्यूज है, शॉर्ट आंसर्स हैं, लॉन्ग एसेज हैं, ट्रू फॉल्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं. ये अभी हम नॉलेज टेस्टिंग की बात कर रहे हैं. ओरल एग्जाम्स हैं, वाइवा है. तो ये सब जो है, ये अलग अलग तरह के असेसमेंट मेथड्स हैं या असेसमेंट स्ट्रैटेजीज हैं, और इन सब के बनाने के अलग अलग अच्छे तरीके हैं. मैं कुछ कॉमन चीजों पे बात कर लूंगा. कॉमन लैंग्वेज स्टूडेंट की समझ आनी चाहिए. अगर स्टूडेंट का सवाल इसलिए गलत हुआ कि उसको सवाल की जबान, उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आई, तो क्या आपने लैंग्वेज का इम्तिहान लिया या आपने कंटेंट का इम्तिहान लिया? तो गलत हो जाएगा नतीजा. मैं पढ़ाई तो बहुत अच्छी करके आया, मुझे मालूम था जवाब, बट मैं जवाब इसलिए नहीं दे सका क्योंकि आपने जो सवाल में अंग्रेजी इस्तेमाल की थी वो मेरी काबिलियत से बाहर थी. तो मेरे नंबर अगर साइंस के सब्जेक्ट में कम आए, तो क्या वो साइंस के नंबर थे, क्या वो मेरी साइंस की काबिलियत थी, या वो मेरी अंग्रेजी की काबिलियत थी जो मुझे समझ नहीं आई? सबसे पहली बात तो यही हो गई. तो लैंग्वेज पे बड़ा जोर देना चाहिए.
अगर अलग अलग स्टूडेंट्स को सवाल अलग अलग तरीकों से समझ आएगा तो उनके नंबर जो अलग अलग आएंगे वो सब्जेक्ट की ज्यादा या कम नॉलेज की वजह से नहीं होंगे, वो उस जबान की कम या ज्यादा समझ की वजह से आ रहे होंगे, जो फिर आपको गलत रिजल्ट्स और गलत नतीजे पे पहुंचाएंगे। दूसरा, जो सवालों में जो अच्छे सवाल होते हैं जिनको हम कहते हैं कि जो सवाल अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, इंटरप्रिटेशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग असेस करते हैं। बहुत एक बदनसीबी है हमारी कि जब मैं इन तरह के सवालात की बात करूंगा तो हम में से ज्यादातर लोगों ने इस तरह के सवालात देखे शायद नहीं होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर नॉलेज के सवाल पूछे जाते हैं, रिकॉल और फैक्ट्स के सवाल पूछे जाते हैं। बट जब भी आप अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग के सवाल पूछेंगे तो आपको एक प्रॉब्लम भी देना पड़ेगा, आपको एक केस देना पड़ेगा कि स्टूडेंट उसको समझे या उसको हल करे। तो उसमें जो आप वो प्रॉब्लम देंगे, केस देंगे, बैकग्राउंड देंगे, पैराग्राफ देंगे, वो स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट से मुताबिकत तो रखता हो, वो स्टूडेंट की समझ तो आए। एक एग्जांपल मैं देता हूं, हमारे यहाँ एक इम्तिहान हुआ था और बहुत बड़े पैमाने पे इम्तिहान हुआ। उसमें जो कॉन्टेक्स्ट दिया गया, या आसान लफ्जों में मैं कह दूं जो अंग्रेजी का ऐसे लिखने को दिया गया, वो दिया गया क्या वुल का इस्तेमाल, नेचुरल वुल का इस्तेमाल फर कोट के लिए, वुलन कोट्स के लिए, वार्म कोट्स के लिए सही है या नहीं। अब जो इतनी गर्मी में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ना कभी फर कोट देखा, ना कभी बर्फबारी होते हुए देखी, वो इस पे किस तरह से एक ऐसे लिख सकते हैं। तो कॉन्टेक्चुअली नहीं था, चाहे सवाल बहुत अच्छा बना हो, उसका मार्किंग स्कीम बहुत अच्छी बनी हो, लर्निंग ऑब्जेक्टिव से अलाइंड हो, कॉन्टेक्स्ट अलग। एक दफा एग्जाम बोर्ड से भी काफी साल पहले गलती हुई, हमने एक कॉमर्स का सवाल दिया जिसमें हमने शॉपिंग मॉल का केस दे दिया। अब जो स्टूडेंट देहात से है, जो स्टूडेंट पहाड़ी इलाकों से है, उन्होंने शॉपिंग मॉल ही नहीं देखा कभी, तो वो शॉपिंग मॉल ही उनको समझ नहीं आ रहा, तो उसके ऊपर जो सवाल है वो हल कैसे होगा। तो कॉन्टेक्स्ट देखना होगा, और इसमें कॉन्टेक्स्ट के बाद फिर फेयरनेस आती कि अगर वो सवाल स्टूडेंट की वैल्यूज, स्टूडेंट का कल्चर, स्टूडेंट की जो उसका अपना बैकग्राउंड है, उसका रिलीजन है, उससे मुख्तलिफ है, उसको चैलेंज कर रहा है, तो स्टूडेंट वहीं फंस जाएगा, वो सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। तो फेयरनेस रिव्यू भी बहुत जरूरी है। तो आपने लैंग्वेज देखी, जब हम कॉन्स्ट्रक्ट की बात कर रहे हैं, सवाल सही बना हुआ है कि नहीं, इमारत सही खड़ी भी हुई है कि नहीं हुई, 4 कमरे तो बना दिए, बट सही इमारत बनी कि नहीं बनी, कॉन्स्ट्रक्ट उस सवाल का सही था कि नहीं था, उसमें जबान देखनी है, उसमें कॉन्टेक्सचुअल रेलेवेंस देखनी है, और उसमें आपने देखना है कि वो उसके बैकग्राउंड, उसके रिलीजियस बिलीफ्स, वैल्यू सिस्टम्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा, अदरवाइज आप अनफेयर हो रहे हैं उन सब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। फिर उस सवाल के साथ आपको उसके जवाब तैयार करने हैं। एज टीचर्स हम समझते हैं हमने सवाल बना लिया और बहुत अच्छा सवाल बना लिया, हमारा काम मुकम्मल हो गया। उसको मार्क कौन करेगा? चाहे आप मार्क करें, चाहे वो कोई और, या 4 टीचर्स और मार्क करें, क्या वो अपनी अपनी मर्जी से मार्क करेंगे? मैं अक्सर ये सवाल करता हूं कि अगर आप अपने बच्चों के जवाबात की फोटोकॉपी करा लें और आप अपने 4 टीचर्स को मार्क करने दे दें, आप में से कोई गारंटी लेगा कि एक ही जवाब जो 4 टीचर्स अलग अलग बैठ के मार्क कर रहे हैं उसको एक जैसा नंबर मिलेगा? आप में से कोई गारंटी नहीं लेगा। ये कहां का इंसाफ है? इसके बारे में कभी हमने सोचा है या नहीं सोचा है? ये रिलायबिलिटी पे आ गए अब हम, क्योंकि मेजर करते हुए, असेस करते हुए गलती हो रही। तो मार्किंग स्कीम बनाइए, मॉडल आंसर्स बनाइए, टीचर्स से और जो सवाल बना रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि सवाल बना के, सिर्फ सवाल बना के ना समझे सवाल मुकम्मल हुआ, उसका जवाब भी तो बनाइए। उस जवाब के नंबर किस तरह मिलेंगे ये भी बनाइए, ताकि चाहे आप आधे स्टूडेंट्स के को मार्क सुबह कर रहे हैं और आधों को शाम कर रहे हैं, तो एक जैसे जवाब को एक जैसे नंबर तो मिले। या 4 टीचर्स मिलकर मार्क कर रही हैं तो एक जैसे जवाब को एक जैसे नंबर मिले, ज्यादा बेहतर जवाबात को ज्यादा बेहतर नंबर मिले, कम बेहतर जवाबात को कम बेहतर नंबर मिले। मैंने काफी वक्त लिया, डॉक्टर जीवा अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। Very well explained. Thank you.
Shumaila, we can, if you have Yes, yes, any Dr. leading Jiva. questions, I'm totally Okay. fine. I think Dr. Naveed explained it very well. हाँ, yes, डॉक्टर नवीद एक्सप्लेन वेरी वेल, और इतना कॉम्प्रिहेंसिव, इतना जामिया जवाब दिया है जिसमें बहुत सारी मुश्किलात का हल भी मिला है कि सवालात कैसे होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि हाँ वो हमारे मकसद को पूरा कर रहा है, फिर वो हमारे कल्चर से भी रिलेटेड हो, फिर ऐसा ना हो कि हमारे कुछ अपने ही कॉन्फ्लिक्ट उसके साथ आ रहे हों, ऐसा ना हो कि कभी वो इन्वायरमेंट ना देखा उस स्टूडेंट ने और हमने उससे रिलेटेड उसका सवाल कर लिया और उसकी हम उस मेजर कर रहे हैं, उसकी स्किल्स को, उसकी लैंग्वेज को, या जो हमारे पर्पस है उसको मेजर करने चले हैं उस सवाल के थ्रू। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया है। यहीं से बात स्टार्ट होती है, जो डिफरेंट क्वेरीज आ रही थी, डिफरेंट क्वेश्चन से मेरे पास मेरी अपने ईओपी के मेंबर्स भी थे, पेज के फॉलोअर्स भी थे, इसके अलावा इंस्टा और इससे रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, कि आगा खान बोर्ड, जो आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड है, उसका ऐसा क्या प्रोसेस है, उसकी क्या वो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पे काम करता है, उसके रिजल्ट इतने फेयर कैसे होते हैं और हम खुद देख रहे होते हैं, तो वो क्या पूरा प्रोसीजर है। उससे वैसे बहुत सारे लोगों को अंदाजा हो गया होगा इन सवालों के जवाब से भी कि किन किन पॉइंट्स को, कौन से मेजर और माइनर पॉइंट भी हैं, उनको देखा जा रहा होता है। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन मैं जरूर करूंगी कि आपका अपना जो आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड है, व्हाट अबाउट द टेस्टिंग एंड असेसमेंट प्रोसेस, किस तरह से स्टार्ट और एंड कर देते हैं? थैंक यू सो मच शुमाइला। अगर मैं पूरा प्रोसेस तफसीलन बताऊंगा तो शायद ये सेशन कम पड़ेगा, ऐसे 3 सेशन रखने पड़ेंगे। सो आई ट्राई बी शॉर्ट, और मैं उन चीजों पे तवज्जो सॉरी टू दूंगा इंटरप्ट जो सर, इंशाल्लाह एक सीरीज भी रखेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल रखें, क्योंकि इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। एंड एज एग्जाम बोर्ड वी वांट के जो गुड प्रैक्टिसेस हैं वो ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। तो उन चीजों पे फोकस करेंगे जो एज टीचर्स, एज स्कूल कोऑर्डिनेटर्स, प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, आप सब अपने अपने इदारों में अपनी अपनी प्रैक्टिसेस में उसको अप्लाई करके असेसमेंट को बेहतर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इम्तिहान बनना कैसा चाहिए, तो अगर आप AKU एग्जामिनेशन बोर्ड का अगर आप देखें तो साइकिल, पहला स्टेप स्टार्ट ही सिलेबस से होता है, एग्जाम सिलेबस से, लर्निंग ऑब्जेक्टिव से, जो नेशनल करिकुलम से अलाइंड है। क्योंकि हमने बार बार ये बात की कि अच्छे सवाल का पहला उसूल तो यही है कि वो लर्निंग आउटकम, लर्निंग ऑब्जेक्टिव से अलाइंड हो। तो आपको एग्जाम सिलेबस आपके सामने रख दिया जाता है। दूसरा, इम्तिहान बनेगा कैसे, कितने टॉपिक्स पे कितने सवाल आएंगे, ये भी एक पूरी साइंस है और एक साइंटिफिक मेथड होता है जिससे ये दरियाफ्त किया जाता है या जिससे ये कैलकुलेशन निकाली जाती है कि आप किस टॉपिक्स पे कितने सवाल देंगे। आसान लफ्जों के लिए एज टीचर जो ये साइंटिफिक प्रोसेस से नहीं गुजर सकते क्योंकि वक्त नहीं होता या नहीं गुजरना चाहते क्लासरूम लेवल पे, तो वो ये जरूर देखें कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कैसे देखें, जांचने का तरीका क्या है, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वो टॉपिक्स जो आगे की पढ़ाई के लिए बेस बनाएंगे, बेसिक बनाएंगे, क्योंकि वो अगर वीक रह गए तो बच्चा आगे तरक्की कैसे करेगा, हायर एजुकेशन, अगली क्लास, अगला टॉपिक, लास्ट 6 मंथ्स कहते हैं ना, हाफ ईयरली एग्जाम के बाद अगले टॉपिक्स, वो उसको वो समझने में मुश्किल होगी। तो वो टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो डेली लाइफ में, जिनकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। तो इस तरह के 2-3 सवालात आप करेंगे जिससे आपको पता लगेगा विच टॉपिक्स आर मोर इंपॉर्टेंट। ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादा नंबरों के सवालात, कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे कम नंबरों के सवालात। जब आप एक साइंटिफिक मेथड से इस प्लान तक पहुंचते हैं तो उसको एग्जाम ब्लूप्रिंट या टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन या एग्जाम स्पेसिफिकेशन कहा जाता है। और AKU एग्जाम बोर्ड की अगर आप अच्छी प्रैक्टिस की बात करते हैं तो जो एग्जाम स्पेसिफिकेशन है कि किन किन टॉपिक्स पे कितने सवाल और कितने मार्क्स के सवाल आएंगे, ये सबको मालूम होता है। तो प्लान बना हुआ है, सिलेबस के साथ प्लान बना हुआ है, मौजूद है। हर स्टूडेंट को पता है किस टॉपिक पे कितने मार्क्स का सवाल आएगा, हर टीचर को पता है, जो इम्तिहान बनाएगा उसको भी पता है कि मुझे इतने इतने टॉपिक्स पे इतने मार्क्स के इतने सवाल बनाने हैं। कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये नहीं पता किसी को कि सवाल क्या आएगा, क्या सवाल आएगा वो नहीं मालूम, बट किस तरह के सवाल, कितने सवाल, किस टॉपिक पे कितने सवाल आएंगे, ये सबको मालूम है। इसके बाद फिर आप चलें, अब आप सवाल बनाना शुरू करेंगे। तो इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। जिस तरह मैंने कहा, आप कंटेंट इंश्योर करेंगे, आप कॉन्स्ट्रक्ट इंश्योर करेंगे। कॉन्स्ट्रक्ट में आप लैंग्वेज देखेंगे, आप फेयरनेस देखेंगे, डिफिकल्टी लेवल देखेंगे। क्योंकि जब आप मुख्तलिफ सवालों को मिला के एक इम्तिहान बनाएंगे
तो आपको ये भी देखना है कि क्या ज्यादातर सवाल मुश्किल डाल दिए, क्या ज्यादातर सवाल आसान डाल दिए, क्या ज्यादातर सवाल एवरेज डाल दिए। जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो एवरेज सवालात, एवरेज डिफिकल्टी के सवालात सबसे ज्यादा हो, मुश्किल सवालात कम और बहुत आसान सवालात कम हो। तो अगर आपका 100 मार्क का पेपर है तो 60 to 70% ऑफ द पेपर शुड बी ऑन एवरेज डिफिकल्टी लेवल, और 15% 20% जो है आप आसान, और 10 to 15 या अगेन 15% आप मुश्किल सवालात रखें। ये एक बेहतर पेपर बनता है। या 60% एवरेज रख लें और फिर बाकी 40% को मुश्किल और आसान में डिवाइड कर लें। तो ये भी इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है, ताकि स्टूडेंट को उसके लेवल के सवालात ज्यादा मिले। मैं बहुत क्विकली एग्जांपल दूंगा, मैं देता हूं। अगर आप एक बैट्समैन की कैपेबिलिटी जानना चाहते हैं, आप एक बहुत मुश्किल बॉलर दे दें उसको, वो हर बॉल पे आउट होता रहेगा, आपको इसकी काबिलियत नहीं पता लगेगी कि ये कितनी मुश्किल बॉल खेल सकता है। आप उसको बहुत आसान बॉलिंग कराते रहे, यानी पेपर बहुत आसान है, हर सवाल आसान है, वो हर बॉल पे 6 मारेगा, हर स्टूडेंट आपका 100 में से 100 या 99 ले लेगा, तो भी आप उसकी काबिलियत नहीं जांच सकेंगे। काबिलियत जांचनी है, बेहतरीन तरीका यह है कि उसको उसके लेवल की बॉल कराई जाए, तब पता लगेगा वो कितनी बॉलें खेल रहा है, कितने पे 6, कितने पे 4 और कब आउट हो रहा है। तो स्टूडेंट की भी बेहतरीन काबिलियत जाननी है तो उसको उसके लेवल के सवाल दें। एक क्लास में ज्यादातर बच्चे एवरेज कैटेगरी में आते हैं, कुछ बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कुछ बहुत मुश्किल हो रहे होते हैं। उसी को सामने रखते हुए ये प्रिंसिपल बनाया गया कि ज्यादातर सवाल एवरेज हो, जो ज्यादातर एवरेज स्टूडेंट्स की काबिलियत के मुताबिक हो, कुछ आसान हो ताकि जो स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी काबिलियत भी जांच जाए, और जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं उनकी काबिलियत भी आप जांच जाए कि वो 89 पे रुके हैं, 92 पे रुके हैं, या 99 पे, या 100 में से 100 ले लिए। तो ये भी आपको एग्जाम बोर्ड इसको भी देखता है। तो डिफिकल्टी लेवल देखी हमने, उसका जो है वो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस देखा, ब्लूप्रिंट देखा, ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे ज्यादा सवालात, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ करिकुलम सिलेबस के साथ अलाइनमेंट देखी आपने। तो ये हम फॉलो करते हैं। पास मार्क्स कितने होने चाहिए, ये भी एक साइंस है। अब ये स्कूल लेवल से हटके हैं, एग्जाम बोर्ड्स उसको फॉलो करें, बहुत अच्छी बात है। तो चूंकि हुकूमत की तरफ से हमें 33% जो है वो पास मार्क रखना होता है, हम साइंटिफिक तरीके इस्तेमाल करते हैं। 2 साइंटिफिक तरीके हम इस्तेमाल करते हैं। आप उनको मजीद जानना चाहे, प्लीज गो एंड स्टडी देम, सर्च अबाउट देम। एनगॉफ स्टैंडर्ड सेटिंग मेथड यूज करते हैं हम, ANGOFF, और बुक मार्क स्टैंडर्ड सेटिंग मेथड फॉलो करते हैं। ये पास मार्क को फिक्स करने के तरीके हैं कि एक इम्तिहान का सही पास नंबर क्या होना चाहिए, कितने पे स्टूडेंट को पास हो जाना चाहिए। 33% क्यों रखा गया हमें नहीं पता, बट हम इन 2 मेथड्स को फॉलो करके ये साइंटिफिकली प्रूव करते हैं कि जो स्टूडेंट पास हो रहा है उसको पास हो जाना चाहिए था, और जो फेल हो रहा है उसको फेल हो जाना चाहिए। इसके बाद फिर जब मैंने बात की कि मार्किंग स्कीम्स हैं, मॉडल आंसर्स हैं, वो पहले से तैयार हो जाते हैं, वो भी बहुत ज्यादा रिव्यू प्रोसेस से गुजरते हैं कि वो जामे हो, क्योंकि अलग अलग स्कूलों के टीचर्स अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे। मैथ्स का एक सवाल एक स्कूल में एक टीचर ने अलग तरीके से सॉल्व करवाया, दूसरे टीचर ने दूसरे तरीके से, और हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी मैथ्स की काबिलियत की वजह से कोई तीसरा तरीका इस्तेमाल करके सॉल्व कर लिया, बट सही तरीका था और सही जवाब तक पहुंचे। अगर हमने एक ही तरीके से मार्किंग स्कीम और मॉडल आंसर बना लिया है तो बाकी 2 तरह के स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो मार्किंग स्कीम्स भी आपको हर तरह के स्टूडेंट्स को ख्याल में रखते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव, जामे, वैलिड मार्किंग स्कीम बनानी पड़ेगी। कभी कभी अलग अलग किताबों में कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स और इंफॉर्मेशन दी होती है, आपने एग्जाम्पल्स पूछी होती हैं, जो कॉमन किताबों से बच्चा पढ़ रहा है वो पढ़ के उसने वो एग्जाम्पल दे दी, मार्क्स मिल गए। एक बहुत होशियार बच्चा है जो 4 किताबें पढ़ता है, जो इंटरनेट पे भी सर्च करता है, उसने वो जवाब नहीं लिखा जो कॉमन किताबों में लिखा था, तो वो आपकी मार्किंग स्कीम का हिस्सा ही नहीं था। उसको इसलिए कसूरवार बना दिया गया कि वो ज्यादा पढ़ रहा था, जवाब तो उसने सबसे अच्छा दिया था, उसके मार्क्स कट गए। तो इन चीजों का भी ख्याल रखना पड़ेगा, और हम इन सब चीजों का ख्याल रखते हैं। फिर जब मार्किंग हो रही होती है तो उसकी क्वालिटी एश्योरेंस होती है, एक से ज्यादा मार्कर्स हर सवाल की मार्किंग को जांचते हैं कि किसी से कोई गलती तो नहीं हो गई। और फिर कुछ क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं
इंडेक्स हैं जो हमें साइकोमेट्रिक इंडिकेटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि स्कोर्स की क्वालिटी कैसी। जैसे हम कहते हैं ना जीडीपी क्या रहा, ग्रोथ और बाकी चीजें जैसे फाइनेंस के इंडिकेटर्स होते हैं, ऐसे असेसमेंट के भी क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं जिस पे एग्जाम बोर्ड काम करता है और इंटरनेशनल बेंचमार्क्स को अचीव करता है। डॉक्टर जीवा, इफ यू मे वांट टू ऐड एनीथिंग। Just one thing, that when we assess a question of a student, so उसकी जो एक बुकलेट होती है, तो उसकी जो मार्किंग होती है, इज नॉट मार्क्ड बाय वन पर्सन, इट इज each questions are marked by different individuals and multiple individuals as well, to ensure the quality of the scores. और जिस तरह डॉक्टर नवीद ने भी ये भी बताया था कि इसके फिर मल्टीपल हमारे पास अराउंड 17 to 18 क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं जिसपे हर सवालात पर वी लुक इनटू इट बिफोर वी मेक अ जजमेंट और अ डिसीजन कि इस बच्चे को ये स्कोर मिलने चाहिए या सही है या नहीं। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करते हैं। तो इस ई मार्किंग में, लाइक हाउ वी डू दैट असेसमेंट इज दैट वी यूज e-marking, which is screen marking for the short answers and the long responses of the students, और MCQs के भी सवालात होते हैं जो OMR के होते हैं। But it doesn't mean कि जब हमने OMR से शीट्स हमने असेस की तो उसमें आपने स्कोर्स दे दिए। उन स्कोर्स को भी देखा जाता है, बच्चों की एबिलिटीज को, उसकी एबिलिटी कंपेयर की जाती है एमसीक्यू से भी एज कंपेयर टू द सीआरक्यूज एंड ईआरक्यूज, और उसमें भी अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है, क्वेश्चंस आर रेज्ड बिफोर वी अनाउंस एनी ऑफ आवर स्कोर्स और रिजल्ट्स टू द स्टूडेंट्स। First of all, kindly mute your mic all, please. किसके माइक से आवाज है? वैसे हमारे साथ जो को होस्ट हैं वो भी म्यूट कर सकते हैं सबको। अली मेहदी को आप प्लीज वो कर दें म्यूट। हाँ, म्यूट कीजिएगा। कमल और अफरोज सरवकास वो भी देख रहे हैं यहाँ पे, शायद इतने क्लियर नहीं है। ओके, काइंडली म्यूट योर माइक। जी वो म्यूट हो गए। ओके जी मैंने कर दिया। राइट, थैंक यू अफरोज। यस सर, थैंक यू सो मच सर। वैसे बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि एक पूरा प्रोसेस, और हम एक सेशंस रखें या कोई सीरीज रखें, और किस तरह से पूरा क्वेश्चन बनता है और पेपर होता है, फिर उसके बाद चेकिंग होती है, मार्किंग किस तरह से है और किसके क्या मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किसमें कितने मार्क्स होने चाहिए, और किस तरह से आगे जाके रिजल्ट अनाउंस होता है, बनता है। तो वो एक हम उस पर भी सेशन रखेंगे, प्रोसेस भी जानेंगे। और बात वही आती है, मेरे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो बहुत कुछ क्लियर हो गया है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन ही था कि डिफरेंस बिटवीन आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड एंड अदर बोर्ड्स। तो अगर बल्कि हम सब शायद आपसे भी पूछा जाए, जिस तरह से प्रोसेस बताया है, तो आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं, हमारा अपना क्या सिस्टम चल रहा है। अच्छा, हम बहुत ज्यादा आर्ग्यू पे नहीं जाएंगे, हम बहुत ज्यादा नेगेटिव बात नहीं करेंगे, हमारे सिस्टम में ये लैकिंग है और ये प्रॉब्लम है और ये इश्यूज आ रहे हैं, हम काफी अरसे से सुन रहे हैं, और यही बात होती है, आर्ग्यू आर्ग्यू आर्ग्यू, और उसके फिर रिजल्ट्स क्या आते हैं, फिर वो जो कहते हैं ना तनकीद बराए तनकीद ही चल रही होती है और कुछ रिजल्ट्स नहीं आते। हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं उसका, हम कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे हमें सॉल्यूशंस अभी नजर आ रहे हैं, क्या क्या इश्यूज हैं जिन्हें हम रिजॉल्व कर सकते हैं, चाहे हमें AKU EB की गाइडेंस की जरूरत पड़े या इन बोर्ड से हमें एफिलिएशंस की जरूरत हो, या हम उनको फॉलो करना चाहें तो उसके प्रोसीजर क्या होंगे, वो भी हम एक सवाल करेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंस की बात करते हैं सर, क्योंकि सर जीवा इसका बहुत अच्छा आंसर देंगे। सर जीवा हमारे साथ आई थिंक इंटर बोर्ड पे भी थे चेयरमैन, जो कराची बोर्ड था ना, बिल्कुल ऐसे ही सर। नो IBCC which is Inter Board Committee Chairman, जो तमाम बोर्ड्स हैं मुल्क में, अराउंड 33, जिसमें 3 बोर्ड्स टेक्निकल बोर्ड्स भी हैं, तो उसका मैं चेयरमैन था। तो खैर जो आपने सवाल किया है, आई वोंट गो इनटू टू मच नेगेटिव साइड ऑफ इट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बट आई थिंक एक स्ट्रक्चरल इशू भी है अमंग अदर्स, जहाँ पर
in many boards, you don't find academics working there. They have to be dependent upon a different department within the ministry, जहाँ से वो टीचर्स को हायर करते हैं या उनसे उनकी सर्विसेज लेते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ द पेपर और फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस. तो यहाँ पे थोड़ा सा एक स्ट्रक्चरल चैलेंजेस उनके है, तो वो उनकी जो क्वालिटी अश्योरेंस जो होती है वो फिर लैकिंग करती है. देन द रिव्यू प्रोसेसेस, some of them are there in other boards, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, but how stringent are those quality indicators, or how many are there is something that one must ask and look into. तो अगर वही बात आ जाती है कि टेस्ट टूल बन कैसे रहा है, उसकी उन डेटास को जिस तरह रिस्पॉन्स बच्चे कर रहे हैं, because whenever a questions are developed, what Dr. Naveed talked about is following good quality indicators in terms of क्या उन processes को आपने follow किया या नहीं किया. आपने फिर भी सवालात बना लिए, आपने उस हिसाब से आपने पेपर भी डेवलप कर लिया, but you still don't know how it will respond until you send it to the students and they attempt the papers. So it is really important to see question by question how the questions are responded by the students. तब जाके फिर आप एक बेहतर तरीके से जजमेंट करते हैं. तो वो प्रोसेस भी लैक है बोर्ड्स में, जो मेरे ख्याल से प्रोसेस में लाने की जरूरत होगी विद टाइम. ऑफ कोर्स देयर आर एफर्ट्स बीइंग मेड. मैं ये नहीं कहूँगा कि एफर्ट्स नहीं की जा रही है, एफर्ट्स हो रही हैं, बट फिर उसके बाद दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आ जाते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ जाती है, वहाँ जाके भी इनको फिर प्रॉब्लम्स होते हैं. और जितनी भी अच्छे प्रिंसिपल्स आप रख लें, सवालात अच्छे बना लें, एग्जाम पेपर्स अच्छे बना लें, लेकिन अगर उस एग्जाम एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे नहीं होंगे, यानी चीटिंग हो रही है या पेपर्स लीक होते हैं, देन वो तमाम अच्छी चीज जो आपने की टू डेवलप एन एग्जाम पेपर हैज नो वैल्यू. तो उन तमाम चीजों को even academics as well as exam administrative point of view से भी there are lots of efforts that is required, and hopefully inshallah with time things will improve. Inshallah, sir. We hope so. Inshallah. Yes, sir. अब यहीं से बात मैं आगे बढ़ाऊंगी. आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड की बात हो रही है और बहुत सारे स्कूल हैं जिनके क्वेश्चंस भी आते हैं. कुछ हेड्स हैं वो एफिलिएशन प्रोसेस की बात करती हैं कि ठीक है, हम अगर आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड से गाइडेंस लेना चाहें या इनको एज अ एफिलिएशन हमारे स्कूल करना चाहे तो वो क्या प्रोसेस होगा. उसके कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल्स रेगुलेशंस हैं या? It's a fairly simple process. You need to have a school first. Right. Teachers होने चाहिए, and it should have a reasonable library or reasonable laboratory. We don't ask for any fancy equipments as such, because we know हमारे मुल्क में बहुत सारे challenges हैं. It's not a very well-resourced country, so the process for affiliation is pretty simple. So yeah, I think and you can go on the website to find the link, or you can get in touch with us. तो उसमें basically ये होता है कि once the schools are in touch with us, our team would go and visit the school, inspect भी किया जाता है स्कूलों को, further discussions भी होती है. अगर हम कोई lacking समझते हैं स्कूल में है, for example teachers are not well trained, or we see that teachers would find it difficult to teach the SLOs that we have, and they won't be able to achieve the standards or the benchmark. Then we have our system where we support the teachers and train them so that they are able to meet those benchmarks. And we've had success stories. Afroz yahan baiti hain, she can give that story, because inka school itself was a success story. They initially came to us and it was a disaster initially, but then we collectively worked together
And I won't take the entire credit from the board's perspective. Yes, we were there to provide the training support, but the school leadership also made a lot of efforts, including the teachers. And within 2 years, they jumped on board again for our SSC examinations and टोपी आगे रखी है डॉक्टर नवीद आपको म्यूट करना होगा डॉक्टर नवीद को म्यूट कर दें yeah so what I was saying that within 2 years they came back and they came back very strong and the students started to get positions in our board across Pakistan. And right now if you say that we've got school quartile, that means ranking of the schools based on the performance of the schools. Right now, her school is basically the top ranked schools in the entire country. And this school is basically low cost schools. It's in a fishing village. And those students are really amazing and teachers are amazing as well. You may ask one question to her. How did they do it? Yes, sir. Sir, no doubt, sir. बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस आपने बिल्कुल ठीक कहा पूरी स्टोरी आपको पता है कि when we start AQVB बोर्ड और हम वहाँ पर डिजास्टर में थे फिर अगेन 2 साल तक ट्रेनिंग हुई हमारे टीचर्स की और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया वहाँ पर अजय थे डॉक्टर अजय सर अजय थे उनकी ट्रेनिंग फिर अली बिजानी बहुत ज़्यादा उनसे ट्रेनिंग ली हमने और हम टीचर्स ने बहुत ज़्यादा हमारी वर्कशॉप हुई और उसके बाद टीचर्स को इतना ट्रेन किया गया और ATT में जो आपका एनुअल टीचर्स ट्रेनिंग होता है उसमें इतना ज़बरदस्त हमें ट्रेनिंग मिलती है एवरी ईयर कि उसके बाद हम इतना ट्रेन हुए कि बच्चों को ट्रेन किया हमने और बिल्कुल वही SLOs बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स उसमें कॉग्निटिव लेवल्स बताए गए हैं कि आपका नॉलेज लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल एप्लीकेशन क्या है और बहुत ईजी है मतलब इट इज़ नॉट डिफिकल्ट कि आप उसको अटेन नहीं कर सकते अचीव नहीं कर सकते हम बहुत इजीली कर सकते हैं इतना सब कुछ जो है क्लियर है इवन के शुमाइला मैं आपको बताऊं कि वी आर गेटिंग द कमांड वर्ड्स एवरी ईयर फ्रॉम AQVB बोर्ड्स में हमारे पास कमांड वर्ड्स की पूरी लिस्ट है जिसको हम फॉलो करते हैं जिसमें हमें पता है कि नॉलेज बेस में हमें कौन से वर्ड्स यूज करने जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं टीचर के लिए वो होता है कि असेसमेंट को डिजाइन करना और उसमें इनके SLOs में ये सारे कमांड्स वर्ड्स के जरिए हम बहुत इजीली डिस्क्राइब हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं असेसमेंट जिसमें हम डिफाइन के लिए या नॉलेज बेस के लिए डिफाइन का वर्ड यूज करें स्टेट का वर्ड यूज करें लिस्ट का वर्ड यूज करें जब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आए तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हमें जो है वो डिस्क्राइब है एक्सप्लेन है इंटरप्रेट है तो पूरी लिस्ट है हमारे पास जिससे हम क्वेश्चन हम टीचर्स को फॉलो करते हैं इवन कि हमने अपने स्कूल में ये किया है कि बोर्ड में हर क्लास के बोर्ड में हमने वो कमांड वर्ड्स पेस्ट कर दिए हैं ताकि वो स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे उसको पढ़े तो उससे पता हो कि जब एग्जाम में ये वाले वर्ड से अगर क्वेश्चन आएगा तो मुझे किस तरह अटेम्प्ट करना है और मैं तो बेसिकली यही करती रही हूँ कि उनसे कहती हूँ कि आप इस वर्ड से इस कमांड वर्ड से मुझे 2 क्वेश्चन बना के दिखाइए तो मुझे पता लगेगा कि किस तरीके से बच्चों की अंडरस्टैंडिंग होगी तो ये सब कुछ के बाद है बहुत लंबी जर्नी के बाद जब फर्स्ट हम 2 साल के बाद जब हम आए तो सिजल थी हमारे पास जिसने शी गॉट 6th पोजीशन फॉर द कंट्री तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट that's wonderful and all the participants sorry to interrupt you Afroz all the participants all the speakers and really this is unplanned this is not हमारे प्लान में नहीं था कि हमें सक्सेस स्टोरी अफरोज हमारी क्योंकि मॉडरेटर हैं EUP के साथ वर्क करती हैं और अफरोज काफी सालों से मेरे साथ भी हैं और इसके साथ साथ उन्होंने हमारे साथ पूरा TBTSC जो टाइप बेस्ड टीचिंग स्किल्स कोर्स है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट MBTI का है वो हमारे साथ किया है तो अफरोज एज अ मॉडरेटर था ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम इस पे बात करेंगे डॉक्टर जीवा नो वेरी वेल अबाउट दैट और हमें सामने अगर हम बात करें कि हम मॉडरेटर है और वो बात कर रही है ये बिल्कुल एक सडन आपकी तरफ से मुझे आए हैं ये जो फीडबैक आ रहे हैं अभी तो मुझे फीडबैक लेने अभी आया है तो मैं आपसे कह रही हूँ ना मैं अगर बोलना शुरू करूंगी तो बोलती जाऊंगी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं फिर आपको स्कूल में ये हर साल आते रहते हैं वो एक होता है ना डॉक्टर जीवा साहब के हाँ भाई एक पर्सन है इनका मॉडरेटर वही बिठाया और वो बात कर रहा है स्कूल्स और ये वो वाला वाला ऐसा कुछ भी नहीं था अफरोज हमारी मॉडरेटर उन्हें होस्ट करना था और वो जिसे कहते हैं ना कोइंसिडेंट
ये कोइंसिडेंट है, अफरोज ने मुझे बताया कि AKU ये भी मैंने तो इससे ट्रेनिंग भी ली है और मैं इसके साथ मैं working ये भी थी करती कि एज अ ई-मार्केट जो हम हर साल जाते हैं, तो मैंने कहा उनके तो सारी वॉल्स के कलर और कहाँ कितने वॉशरूम में क्या है वो सब कुछ रटा हुआ है, हम हर साल जाते हैं एज अ जबरदस्त। वहां पर बहुत जबरदस्त सिस्टम है, तो सिस्टमेटिक वे। ये हमारे लिए एक और आज ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको और भी कोई गाइडलाइन लेनी है, कुछ आपके माइंड में क्वेश्चन थे AKU से रिलेटेड या सारे एग्जाम से रिलेटेड प्रोसेस से, तो अफरोज से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, EOP पे होती हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं, उनसे रिलेटेड बात। अच्छा, अब हम बात करेंगे जो स्कॉलरशिप की बात आती है या इंटर्नशिप की होती है स्टूडेंट्स के हवाले से, तो ये भी मालूम होना बहुत जरूरी है सबको कि स्कॉलरशिप जो मिलती हैं और एक ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है और किस तरह से विन कर जाते हैं वो। सर, इसके बारे में बताइएगा। जी, so there are multiple programs in the exam board. For getting scholarships for students within the system, जो उस वक्त for example हमारी SSC की या हायर सेकेंडरी स्कूल क्वालिफिकेशन के लिए वो अपीयर हो रहे हैं. So there are multiple programs, but these are dependent upon when we do fundraising for creating some endowments for scholarships. It is very much dependent on the wishes of the donor कि वो किस रीजन में या पूरे मुल्क में देना चाहते हैं. So, for example, right now we have one endowment for Karachi, जिसे हम Bridge Scholarship कहते हैं. तो उसमें ये होता है कि how students perform in their exam, so based on merit as well as need. तो उसका again उसका भी assessment criteria है for the need purpose, जो बच्चों की need assessed होती है, and then scholarships are announced. Then we have scholarship based on for the northern regions of Pakistan, जैसे गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के लिए है, and that is completely based on merit-based scholarship. Again, it all depends upon this. Then there is a lot of partnerships with the universities that we do, because in the past many years, I had a lot of conversations with vice chancellors, the rectors or the deans or the registrars, and every one of them said that they are very impressed by the students of AKU examination board. They see that their level is very good, and for them, what they said is it is not only the university which brings in the academic or intellectual environment in the campus, but also the quality of the students who augments that intellectual environment in the campus. So a lot of university wants to attract students from AKU examination board, and they offer scholarships to our students. So again, this is all dependent on the university relationship, and right now we are working with international universities as well to provide scholarships for our students for their undergraduate studies in US, Canada, UK. I'll just give you an example of one of our students, Rohan Prakash. He was from Hyderabad. He had issues with his vision, and he was 95% blind, so he had only 5% vision. We provided that opportunity to Rohan to appear for our examinations from grade 9 onwards. So all support system was given to him. Rohan was amazingly outstanding student, and he performed extremely well in the exams. And he scored extremely well in both SSC as well as HSSC. Right now, as we speak, he is currently in the US doing his undergraduate degree, and he has been offered placement in JP Morgan, which is investment banking in the US in New York, for a job there. Unfortunately, he is right now almost 100% blind, but the thing is, the way he has been studying and the way he was
working in his university, his professors asked him, you know, where were you studying in Pakistan? What kind of system? Because what we hear from other people about education system in Pakistan, we hear all the bad things. So, you know, for our students to do so well in universities, these professors then reach out to us to understand more about our system, what kind of approach our assessment is. So sorry. Shaukat Ali ko thoda sa kar mute. Thank you. So what kind of assessment system it is all about, and if the scores that we have given in our transcripts or our certificate, it really shows the true ability of the students. And that's where the confidence builds up and the partnerships comes between us and the university. So hopefully in the future, we'll have more opportunities for not only national, but as well as international scholarships, as well as internships also. Thank you so much, sir. Inshallah, we hope so. And in the last, any advice for our test system, our assessment system, जो going on है, आप क्या advice देंगे? वैसे तो हमारे पास इतने comments आते हैं और advice आती है, लेकिन एक main कि हम अब क्या कर सकते हैं? और जब मेरे पास यहाँ लोग होते हैं, जब भी हम कोई सेशन कर रहे होते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं या ग्रुप पे भी होते हैं, तो बात हो रही होती है सिर्फ वही तनकीद की और हमारा सिस्टम ठीक नहीं है, तो हम अपने एंड पे क्या कर सकते हैं? हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए, और अगर हमें हंगामी तौर पे कौन से ऐसे रूल्स रेगुलेशन या कौन से ऐसे तरीके हैं जो हम फौरन से फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि हम फिर गवर्नमेंट का वेट करें, फिर किसी और का वेट करें, हम क्या कर सकते हैं और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। तो यू आर अ रियल चेंजर, यू आर अ लाइफ चेंजर, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जब सेशन लेने आ रहे हैं और आप सब जब इतना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, इट्स मीन दैट आप में वो विल पावर है, आप कर सकते हैं। तो आप अपने एंड पे जरूर कीजिए और ब्लेम गेम करना जरा कम करें, और हम अपने एंड पे क्या कर सकते हैं सर, तो वो जरूर बताइएगा प्लीज। No, absolutely. Once again, I'll just talk about the government. Efforts are being made, and then, but there's a long way to go. You know, I'll be honest with that. You know, I've talked to you before as well that assessment drives learning. If the benchmark for the assessment is to memorize the content of the textbook, then the teachers in the classroom will help the students to memorize the content of the textbook. तो वो कहते हैं ना, अगर नॉलेज लेवल के सवालात बनते हैं या वही सवालात रिपीट होते हैं जिससे बच्चे याद कर लेते हैं, अगर हम अपने उर्दू का पर्चा देखें मुल्क में जिस तरह आता है, तो उसी एक शायर पे आप एक नोट लिखे या एक ऑथर पे नोट लिखे, so people are memorizing those content. तो टीचर्स क्लासरूम में वही याद करवाती हैं, उसी तरह नोट्स बनवाती हैं, उससे फिर because why do they do this is because everybody knows that the promotion to the next level is dependent on the scores of these exams. And even students, they also know that for them to excel, they need to memorize. तो ये vicious cycle चलता है. Unfortunately, teachers की भी जो appraisals होती हैं, वो भी connected होती है how students perform in board exams. So, you know, in this case, I would say while the government is trying to improve their system, and it may take some time, I think we need to work and take actions ourselves कि हम एटलीस्ट स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जो आप स्कूल में असेसमेंट लेते हैं या स्कूल में टेस्ट लेते हैं, उसको बेहतर करें. ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स जो अभी डॉक्टर नबीद बात कर रहे थे और कुछ मैंने बताए, उसको आई थिंक अगर आप फॉलो करें अपने स्कूल बेस्ड असेसमेंट में, तो आप एटलीस्ट अपने स्कूल लेवल तक वो एक इम्पैक्ट जरूर डालेंगे, जहां पर बच्चे की जो एक
नॉलेज और उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके स्किल्स, उसके एटीट्यूड को जो मेजर करना है, कैसे करना है, वो आप बेहतर कर लेंगे, उसका इम्पैक्ट बहुत हाई होगा. Otherwise, I'll give you a recent example. What we hear, sometimes from the teachers, the kind of feedback that teachers are giving to a student or their parents is, so negative or destructive that it demotivates a child to learn or enjoy the process of learning, and it brings anxiety among parents that their child is not good. Recently, one of the teachers of my daughter, who's 6 years old, उन्होंने एक वॉइस नोट भेजा मेरी वाइफ को कि आज हमने एक स्कीम हमने असेसमेंट की क्लास में ऑफ द राइटिंग एसेज, और इसकी क्रिएटिव राइटिंग इज हॉरिबल. And my wife forwarded me that message, and I said, if my daughter's performance is horrible, that is reflecting her teaching. तो टीचर्स ने भी देखना है कि क्या है, और the choice of words that we use to give feedback is also extremely important, that we need to be very careful. It's a very thin line, because these young minds are very sensitive to what we say. तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, तुम बेवकूफ हो, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं होगा. You are giving that signal that a child starts to believe in those words, that yes, my personality is like that. And parents are not educationists. They've never had trainings of what different pedagogies or strategies or assessment strategies there are. और अगर आप वालिदैन को ये कहते भाई इससे नहीं आता, आप कुछ करें, आप उससे पढ़ाएं, वो वालिदैन क्या पढ़ाएंगे? Because they are not trained. Let parents be, for teachers, I would say, you need to know that let parents be a parent. Let a mother be a mother. Her role is to provide that love, that security, that confidence. And our role as educationists is to take that ownership and responsibility. So, वो जब आप measure कर रहे होते एक बच्चे को, I asked them, for the reading, they had this issue, and I asked, what tool did you use to measure my daughter's reading ability? None. हम समझते हैं, हमें ऐसा लगता है. So, if that is if your judgment is based on perception, then there is a higher probability that you are going to give a wrong evaluation of the child, and that creates a lot of anxiety, और फिर बच्चे के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है. So अगर हम अपनी स्कूल बेस्ड असेसमेंट को भी बेहतर कर ले, अच्छा कर ले, अच्छे प्रिंसिपल्स के साथ चले और उसको एक अच्छा स्ट्रक्चर दे दें. There are some schools who have done a marvelous job. इस वक्त एक कुरंगी एकेडमी एक नाम है, दूसरा I would say Habib Girls School. I've discussed that with you earlier as well. ये class 1 से लेकर class 8 तक formative assessment ही करते हैं. There are no numbers. What does that number means? 80%. उसका मतलब क्या है? तो वो तमाम चीजें formative assessment में करते हैं, and then their students perform extremely well in our exams. They are outstanding students, and the confidence level is outstanding. तो ये तमाम चीजें बड़ी important है कि while the system is being improved in the country, which may take some time, हमें क्या करना चाहिए? We need to take action, and that action is that at least in our schools we should improve school-based assessment. इसमें पंजाब ने एक बड़े अच्छे steps लिए, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के थ्रू
स्कूल बेस्ड असेसमेंट काफी हद तक अभी इम्प्रूव होगा, because they have recently taken steps where teachers are being empowered to develop nice test tools using good questions. And then formative assessment bhi implement hona shuru ho jayega very soon. And they are also doing large scale sample based testing, which will show how at regional level schools are performing. It's just a sample based. No one is going to judge the students. They will judge the system through those large scale sample based assessment. Unfortunately, ये system हमारे private sectors को अगर देखें, वो missing है. Schools are working in silos. No doubt, private sector has performed very well in the past, and they are doing so. But we are working in silos, and I think we should take or develop some opportunities where some kind of studies, or we can work together where these sample size large scale assessment can be done and can be distributed to schools के ये इस तरह हो रहे हैं. उसके लिए important यही होगा कि सब एक ही curriculum follow करते हो, teachers की training अगर हो तो उस पे accessibility उनको मिल जाए. I would encourage school principals to invest on teachers training. जितने भी पैसे आते हैं जो एजुकेशन में जाते हैं, वो तमाम पैसे इस्तेमाल हो जाते हैं फॉर टीचर्स. अगर टीचर्स ट्रेनिंग पे हो रहे हैं, वो तमाम पब्लिक सेक्टर में यूज हो रहे हैं. प्राइवेट सेक्टर में एक पैसा भी नहीं लगता, जबकि प्राइवेट सेक्टर में 22 मिलियन स्टूडेंट्स होते हैं. तो ये जो इस तरह की चीजें हैं कि यू नो हाउ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैन बी मेड, हाउ स्कूल्स अगर पंजाब में है दे कैन रीच आउट टू पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन, वहां पर जाके वो उनके साथ लिएजॉन करे, पार्टनरशिप्स करे, where they can benefit with the tools that they have that can help them to review their own processes, वो अपने बेहतर की तरफ जा सके. सेम गोज विद इन सिंध में है तो सिंध के साथ बात करनी चाहिए कि किस तरह एक ऐसा मॉड्यूल बनाया जाए जहां पे प्राइवेट सेक्टर भी उसको फायदा हो, बिकॉज वी हैव टू वर्क इन पार्टनरशिप्स इन दिस. तो काफी मैंने लंबा कह दिया, बट आई थिंक स्कूल बेस्ड असेसमेंट को इम्प्रूव कर लिया जाए और साथ ही साथ कुछ पार्टनरशिप्स भी करनी चाहिए. राइट सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडलाइन. और बिल्कुल सही बात है, वी नीड टू डू अवर सेल्फ एक्चुअली. कि फिर वही वाली बात है कि हम गवर्नमेंट लेवल की बात करें और गवर्नमेंट नहीं कर रही, हमारी ट्रेनिंग्स पे काम नहीं हो रहा, तो प्राइवेट 22 मिलियन जिस तरह सर ने बात की है, तो वो कहाँ जाएंगे स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या वर्किंग हो रही है, तो वो हमें खुद देखना है. और पार्टनरशिप की बात बहुत अच्छी की सर ने. पार्टनरशिप होती है, जिस तरह से पॉसिबिलिटी आती है आप पार्टनरशिप करके और ऑब्जेक्टिव्स अपने सेट करके उससे रिलेटेड आप सारा प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं. और मैं जब रूल्स रेगुलेशन की बात करती हूँ और सारे प्राइवेट सेक्टर की, तो वन वर्ड ऐसा लगता है रूल में आ जाना चाहिए कि जो नेगेटिव वर्ड होते हैं ना, जो टीचर यूज करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम कभी उर्दू अच्छी नहीं कर सकते, तुम्हारी मैथ्स तो ठीक हो ही नहीं सकती, तुम तो डफर हो, मतलब ये जो नेगेटिव वर्ड्स हैं बिल्कुल खत्म कर दें. कुछ ऐसी पॉलिसियों को, ऐसा रूल स्कूल खुद से बनाए कि टीचर को ये वर्ड यूज करने ही नहीं है, क्लास में, बाहर, कहीं भी नहीं. क्योंकि ये वर्ड उस वक्त तो कह देते हैं, स्टूडेंट की लाइफ पे वो डेंट का काम करता है, जो डेंट कभी जाता नहीं है पूरी लाइफ से, वो पॉलिश हो जाता है, लेकिन वो टाइम टू टाइम जब भी कभी मैथ्स की बात आएगी तो वो क्लिक जरूर होता है कि हाँ मैं तो मैथ्स सही नहीं कर सकता था ना, तो इसलिए वो टाइम पूरी लाइफ पे भी इफेक्ट हो सकता है. तो ऐड कर दूं मैं इसमें, इफ यू डोंट माइंड. यस यस सर. आपने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, इसके सोल्यूशन भी है. और जिस तरह आपने कहा कि माइंड में डेंट पड़ जाता है, चूंकि यू नो इफ देयर इज अ रेजर और मैंने अपने हाथ में कट कर लिया तो मुझे चोट भी लगेगी, दिखता भी है दैट इट्स ब्लीडिंग. सो यू नो आई वुड नेवर डू दिस अगेन. अगर किसी और ने मुझे किया है, दे विल नॉट डू इट अगेन. नो, उससे बैंडेड भी लगेगा, यू विल अलाउ इट टू हील. But when you pass comments, negative comments or negative feedback to a student, जो damage brain में हो रहा है, you can't see, and since you can't see, you continue to hit the child
with that negative statements, negative feedback, thinking that if we keep on saying this thing, the child is going to understand and they will fix their problem. But instead, we are creating a problem for children. जहां तक आपकी बात आई कि एक रेगुलेशन में आ जाना चाहिए, there is a law in the country, पाकिस्तान में है, corporal punishment पे आता है, उसमें साफ लिखा हुआ है, even if you say something negative which is hurtful to a child, जो उसको mental torture कर सकता है, that is also considered to be a criminal offense. So I think इस पे भी हमें सबको एक ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, एक अवेयरनेस भी देनी चाहिए, बट उसका मिसयूज भी नहीं करना चाहिए. But you know, there is a law to protect children. Of how much training we can give to schools, because I don't want to blame the teachers. Unfortunately, क्योंकि हमारा सिस्टम माजी में भी ऐसा था, हम भी गुजर चुके हैं, नील डाउन करवाया जाता था, हमें दूसरी कॉर्पोरेट पनिशमेंट भी होती थी, बट वी एक्सेप्ट इट. लेकिन अब कानून आ गया है, तो उसमें अवेयरनेस की जरूरत है, एंड वी हैव टू लेट देम नो कि ये चीज गलत है, दिस इज नॉट राइट. थैंक यू. बिल्कुल ठीक कहा सर आपने. जिस तरह अवेयरनेस बढ़ रही है और अवेयरनेस questions, there's so many hand raised. यस सर, हम लेंगे. और अच्छा, क्योंकि टाइम कम है, टाइम शॉर्ट है, आप हमारे ग्रुप पे भी दे सकते हैं, हमारे लाइव जो कवरेज चल रही है, लाइव स्ट्रीमिंग पे, वहां भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो टाइम टू टाइम मैं सर को भी क्वेश्चन फॉरवर्ड करूंगी और उनके सबके रिप्लाई किए जाएंगे जरूर. और आप आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट पे पर्सनली जाके भी गो थ्रू कर सकते हैं कि इनके क्या प्रोसीजर है और किस तरह से हम इनकी गाइडलाइन ले सकते हैं. और साथ साथ हमारे साथ मिस खान है. She wanna say something regarding Dr. Shahzad Jiva. Miss Khan, Punjab Examination Board Committee. Are you here? Yeah, hello. Hello, everybody. Those who are listening to Dr. Shahzad Jiva, I just wanted to share the feedback. I am from Punjab Examination Commission. My name is Zubia Khan. And contribution of Sir Shahzad Jiva has been tremendous for Punjab Examination Commission. There was a policy on assessment policy framework. He was leading that. And due to that, we had been able to bring a lot of informative and a lot of improvement in the assessment system in the entire province. Recently, as we are mentioning that formative assessment has been a great part of students' learning, we had been to that Habib School systems, and it was good to know that the team that was built in that system had been built by Aga Khan University Board, and that was under the guidance-ship of Dr. Shahzad Jiva. So, sir, thank you so much. A lot of members from Punjab Examination Commission had joined this session. They are listening to you, and your contribution for the entire country is tremendous. I wanted to thank you from all of us. You are a true leader for all of the educationists who are working positively in this field. So that was my feedback from Punjab Examination Commission. Thank you for quoting Punjab Examination Commission as it is excelling under the guidance-ship of people like you. Thank you. Thank you so much, Ms. Sobia Khan. I just want to put a disclaimer. I think I would like to give credit to Ms. Nargis Alvi and her team from Habib Girls, who turned things around, you know, and we learned from them as well. So there are some amazing educationists in Pakistan serving. So for Habib Girls, I would like to give credit to Ms. Nargis Alvi and her team. Thank you so much, Ms. Khan. Thank you so much, Dr. Shahzad Jiva. Thanks a lot, all participants and our international participant and international speaker as well here, Ms. Nada and other Ms. Maria Alicia. If okay, yes, Ms. Nada, do you want to add something? Yes. I want to say thank you, Shumaila. Thank you, educationists of Pakistan, for this great session. Professor Jiva,
and Professor, that great session. I really learned a lot about this testing, assessments, and honored to be here today. Thank you. थैंक यू मिस नादा, थैंक्स अ लॉट ऑल। और एंड में हम कंक्लूजन की बात कर रहे हैं तो बात वही आती है कि फर्स्ट हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ हमने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं, उसी ऑब्जेक्टिव को मेजर करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उसको गेन करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स कितने हमें मिल गए हैं। उसके लिए हम पूरा एक प्रोसेस बनाते हैं, एग्जाम बनाते हैं, टेस्ट पेपर होता है। अगर हमें नॉलेज है हमारे ऑब्जेक्टिव में तो हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे। अगर हमारा मकसद है कि हम उससे उसकी स्किल्स को मेजर करें तो हमारे क्वेश्चंस भी उसी तरह से होना चाहिए जो स्किल्स को, स्पेसिफिक स्किल्स को मेजर करते हैं। जहां पे एमसीक्यूज की बात आएगी तो हम एमसीक्यूज के थ्रू भी लेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगी, ट्रू एंड फॉल्स भी होंगे, कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं उसके थ्रू जो एमसीक्यूज में होते हैं उसके थ्रू हम मेजर करेंगे। तो बात वही आती है कि एक टेस्ट पेपर किस तरह का हो, ऑब्जेक्टिव्स जो हों उससे रिलेटेड हो, उनको हासिल किया जाना खास मकसद हो, तो हम बहुत अच्छे उसके रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। और अब हम अपने असेसमेंट सिस्टम को कैसे लेके चलेंगे 0 to अगर हम 1 जो हम प्रेप 1 की बात करते हैं और 8 क्लास तक लेते हैं तो वो हमारा अपना एक प्राइवेट सिस्टम होता है। तो उसके लिए भी वही है, सिस्टम वही है कि ऑब्जेक्टिव्स हमारे सेट हैं और हम उस असेसमेंट को देखते हुए, उसमें खास चीज ये होती है कि जब हम 9 मैट्रिक या ओ लेवल ए लेवल की बात करते हैं तो उसमें हम पूरे ओवरऑल एक असेसमेंट ले रहे होते हैं कि नॉलेज भी है, स्किल्स भी है और उससे रिलेटेड एक पेपर बना और उसका हमने रिजल्ट देख लिया। लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज भी होता है कि हम डेली स्टूडेंट्स को देख रहे होते हैं, टीचर्स, प्रिंसिपल, हेड्स। तो अगर हम देखें कि 1 वीक एक स्टूडेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है किसी सब्जेक्ट में और उसके आंसर्स भी ठीक हैं, और एक 1 पेपर जो हमने एक असेसमेंट के तौर पे लिया है, उसका कोई टेस्ट है जो हम 3 मंथ्स बाद लेते हैं, उसने वो टेस्ट सही नहीं किया या कहीं पे कोई इशू आ गया, उसको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ गई या दूसरे इश्यूज आ गए कि उसको क्लियर नहीं हुआ, तो उससे हम उस एक पेपर से उसका पूरा रिजल्ट बनाकर पेरेंट को दे देते हैं कि योर kid don't know regarding that, and your kids don't know or he doesn't know about this और वही वाली बात सर की कि कुछ जानता नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें अपने असेसमेंट सिस्टम को ठीक करने के लिए सबसे पहले वही है बात है कि हमें ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस वही चल रही है और हमने आज से 10 साल 15 साल पहले जो पढ़ा और जिस तरह से सीखा है हम उसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अपनी प्रैक्टिस अगर हम कर रहे थे तो अब हमें अवेयरनेस की जरूरत है, अवेयर होना है रिगार्डिंग टेस्ट असेसमेंट, तो हम बहुत अच्छे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल कर सकते हैं अपने एंड पे किसी और को ब्लेम दिए बगैर। जज़ाकल्लाह ऑल। ओके मिस कमल, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? यस। I really want to add. It was such an insightful, productive, and thought-provoking session, Sir Shazad Jiva and Sir Naveen. You have done a marvelous job, and you have encompassed the basic components of testing and assessment criteria. And there are so many comments of appreciation for you both. So thank you so much. Thank you so much. थैंक यू मिस कमल। और आपकी जो क्वायरीज हैं, जो भी यहाँ क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर भी वो उसकी स्क्रीनशॉट ले रही हैं आपने? यस सर वकास, वी आर गोइंग टू एंड। उसके हमने स्क्रीनशॉट्स भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, सर से डायरेक्ट भी बात की जा सकती है। सर से मैं आपके जो क्वेरीज आ रही हैं जो पेज पे भी आ रही हैं वो बिल्कुल लूंगी। तो वो जो बार बार आ रहे हैं ना मेरे पास मोबाइल पे भी हमारे क्वेश्चंस नहीं गए, क्वेश्चंस बहुत वही उसी से रिलेटेड हैं कि असेसमेंट सिस्टम को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं और हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। आपके पास मिनिमम रिसोर्सेज हैं, बहुत कम हैं। आप इस स्कूल के हेड हैं, आप एक स्कूल में हैं, आप असेसमेंट या कोई भी पेपर बनाते हैं, आप एज अ टीचर काम कर रहे हैं, अपने एंड पे जो रिसोर्सेज हैं आप उसी पे बहुत अच्छी वर्किंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फिर गवर्नमेंट की हेल्प है और हमारे पास बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर हम वही ब्लेम गेम की बात करें और अगर हम इश्यूज बनाना चाहें तो बहुत सारे इश्यूज हैं और ये सिस्टम ठीक हो ही नहीं सकता, फिर हम वही बात करेंगे। लेकिन हम अपने एंड पे क्या कर सकते हैं, सर ने बहुत अच्छी गाइडेंस दी है रिलेटेड टू सिस्टम, असेसमेंट सिस्टम, टेस्ट सिस्टम और रिजल्ट हम किस तरह से बना सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल।
और stay connected with Educationists of Pakistan and Aga Khan University Examination Board. Thanks a lot. Allah Hafiz. Fi Amanillah. Shumaila? Yes. Yes, Afroz, feedback form आप देंगी? Yes. Yes, आप I have announcement shared करते in the हैं, then- chat box ना. Chat box में Okay. मैंने एक feedback form Padlet का share किया है. तो उस link को open करें, उसमें एक plus sign है right bottom, ठीक है? नीचे उस plus को press करके आपने अपने नाम के साथ एक comment जो है वो जरूर share करना है कि जो भी कुछ आपने इतना जबरदस्त session के बाद learn किया है, क्या है, understanding क्या है, whatever you want to write, तो आप उसे वहाँ लिख के publish कर दीजिए. Thank ओके you so सबसे much. पहले आप उस लिंक को अपने पास कॉपी पेस्ट कर लें, अपने आप को कॉपी कर लें उस लिंक को अपने पास, अपने व्हाट्सएप पे या कहीं भी उसको कॉपी कर लें, फिर आराम से आप फीडबैक देते रहें. वी हैव टू गो अदर सेशन, वी हैव टू मूव. थैंक यू सो मच. Thank you. अल्लाह हाफिज. Thank you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज सर. फी अमान अल्लाह.